ہیں کہ خداوند نے بھائی صفدر کو آزادی بخشی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ پچھلی بار جب ہم 19 جنوری کو آئے تھے تو ہمارے بھائی جو ہیں گیت گا رہے تھے، یسوع کروایا آزاد آزادی، تو آزادی ہم نے نہیں آپ کو بخشی، جس کی آزادی ہے اس نے آپ کو آزاد کروایا۔ آمین۔ یسوع آزاد کروانے آیا اور آج بھی یسوع نے اس فیملی کو آزاد کروایا۔ آمین۔ تو ایک پیغام جو ہے میں چند منٹس کے لیے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور جتنے میرے ناظرین ہیں فیس بک پر مجھے دیکھ رہے ہیں، بعد میں مجھے یوٹیوب پر دیکھیں گے، یہ پیغام جو ہے بڑا غور و فکر والا پیغام ہے، اور جس کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھول سکتے ہیں۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، جس کے پاس بائبل مقدس موجود ہے وہ میرے ساتھ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط کھول سکتے ہیں۔ غلطیوں کا خط 6 باب اور اس کی 2 آیت، یہاں پر لکھا ہوا ہے، تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا آج شام ہم سبھی کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ مقدس پولس رسول جو ہیں فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ اب خداوند یسوع المسیح کی جو شریعت ہے ہم کیسے اسے پورا کر سکتے ہیں، یا پھر دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہم پوری شریعت پر عمل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم پوری شریعت کو پورا کر سکتے ہیں؟ ہم جو انسان ہیں، ہم جو خاک ہیں اور راکھ ہیں، ہمارا رتبہ ہی کیا ہے، ہمارا مقام ہی کیا ہے؟ آج تک کوئی انسان شریعت پر مکمل طور پر پورا نہیں اتر سکا، پورے طور پر عمل نہیں کر سکا، لیکن مقدس پولس رسول فرماتے ہیں تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے تو یہاں پر تو پولس رسول جو ہے مسیح کی شریعت کی بابت کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کی شریعت اور پرانے عہد نامے کی شریعت جدا نہیں ہے، الگ نہیں ہے، بلکہ ہم سب کا یہ کامل ایمان ہے، نبیوں کو بھیجنے والا مسیح ہے، پیغمبروں کو بھیجنے والا مسیح ہے، رسولوں کو بھیجنے والا مسیح ہے، کاہنوں کو بھیجنے والا مسیح ہے، بادشاہوں کو بھیجنے والا مسیح ہے، اور فرشتوں کو بھی بھیجنے والا مسیح ہے، اور مسیح نے ہی موسیٰ کو شریعت دی تھی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو موسیٰ کی شریعت ہے وہ مسیح کی شریعت سے جدا ہے، نہیں، مسیح ہی شریعت دینے والا ہے۔ تو سوال یہاں پر پیدا یہ ہوتا ہے، کیا انسان شریعت پر مکمل طور پر عمل کر سکتا ہے، پورا اتر سکتا ہے؟ پولس رسول فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ شریعت کو پورا کریں، مکمل کریں، جیسے یسوع المسیح پورا کرنے کے لیے آئے تھے شریعت، تو اگر آپ بھی پورا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کا بھار اٹھانا پڑے گا۔ صرف ایک دوسرے کا بھار اٹھا لیں، شریعت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میں شریعت پر عمل کروں تو آج تک کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو شریعت کو پورا کر سکے، شریعت پر مکمل طور پر عمل کر سکے۔ لیکن پولس رسول اعظم فرماتے ہیں جب تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاتے ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ مسیح کی شریعت کو پورا کرتے ہو۔ اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ ہم تو اپنا بھار نہیں اٹھا سکتے، ہم کسی کا بھار کیسے اٹھائیں گے؟
हम तो अपने बच्चों का भार नहीं उठा सकते, हम तो अपने भाइयों का भार नहीं उठा सकते, हम तो अपनी बहनों का भार नहीं उठा सकते, हम तो रिश्तेदारों का भार नहीं उठा सकते। और बलूस रसूल ये कह रहे हैं तुम एक दूसरे का भार उठाओ। सानू ते अपना भार जेड़ा ना चुकना औखा होया है। साडे कोल ते अपने घर दे खर्चे नहीं पूरे हुंदे, अपना जेड़ा पेट नहीं पाला जा रहा, ते असी फिर किंज होरां दा भार उठावांगे? क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर पैशन भी नहीं है कि हम मसीह की शरीयत को पूरा करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह की शरीयत एक ही बात से पूरी हो सकती है, और वो ये है कि आप एक दूसरे का भार उठाना सीख लें, एक दूसरे का भार उठाएं। और जब आप एक दूसरे का भार उठाएंगे तो आप मसीह की शरीयत को पूरा करेंगे। असी अपने अपने खानदान दा, अपने अपने भाइयों भैनों दा भार चुकते आ रहे हैं, तो की कर लिया? उन्होंने राजी किया है? बड़ा राजी करने की कोशिश करने, लेकिन वो नहीं राजी होंगे। क्या आपके भाई, आपकी बहनें आपसे राजी हैं जब आप उनका भार उठाते हैं? अपने bच्चों का भार जब उठाते हैं, हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को कोशिश करते हैं कि इन्हें खुश कर दें, लेकिन नहीं खुश कर पाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहनों, भाइयों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, दोस्तों को, उनको खुश ना करें, यीशु को खुश करें। और यीशु को आप इस तौर से खुश कर पाएंगे जब उसकी शरीयत को पूरा करेंगे। और उसकी शरीयत इस तौर से पूरी होती है जब आप एक दूसरे का भार उठाते हैं। जब आप एक दूसरे का भार उठाएंगे तो फिर आप यीशु मसीह की शरीयत को क्या कर सकेंगे? पूरा कर सकेंगे। और फिर जब हम मत्ती की अंजील का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा था कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। हम जितने भी इस अहले ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सबका ये ईमान है कि खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीम जो है ये ज़िंदगी बख्शती है। और हम सबका ये कामिल ईमान है कि खुदा का कलाम जो है वो ज़िंदगी बख्श कलाम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यीशु मसीह की ही तालीम है कि जब तुम किसी पर रहम करोगे तो मुबारक होगे, और जब तुम किसी पर रहम करोगे तो आसमान का खुदा तुम पर रहम करेगा। अफसोस वाली ये बात है कि कभी हमारे दिल के अंदर रहम आया ही नहीं, ना अपनों के लिए आता है और ना बेगानों के लिए आता है। अगर आप औरों पर रहम करेंगे तो फिर यीशु अल मसीह ये फरमाते हैं कि वो क्या है? मुबारक हैं, और खुदा उन पर क्या करेगा? रहम करेगा। ये वही बात है, एक दूसरे का भार असी उदों ही उठा सकांगे जदों एक दूसरे ते रहम करांगे। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, किताब मुक़द्दस के अंदर हमें लिखा हुआ मिलता है कि मसीह की शरीयत को हम जो है इस तौर से पूरा कर सकते हैं जब हम एक दूसरे पर रहम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो रहम है वो इंसाफ पर गालिब आता है। खुदा की जो शरीयत है उसका जो बुनियादी जुज है वो रहम है। खुदा जो है वो रहीम खुदा है, खुदा जो है वो फजल करने वाला खुदा है। और फिर हमें लिखा हुआ मिलता है मत्ती की अंजील 9 बाब की 13वीं आयत के अंदर, मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पैदा पसंद करता हूँ। हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे का भार उठाने की बजाय, एक दूसरे पर रहम करने की बजाय, जो फिसे हुए हैं, जो कर्ज के अंदर हैं, उन्हें कर्ज से निकालने की बजाय, उन पर रहम करने की बजाय हम क्या करते हैं? हम अपने घरों के अंदर शुक्रगुजारियों की देगे चढ़ाते हैं। ये नहीं हम देखते, ये नहीं सोचते क्या ये किसी मुस्तहिक के पास देख जा रही है? ये जो रोटी की 2 बुर्कियां हैं, रोटी की जो 2 निवाले हैं, क्या मुस्तहिक के मुंह में जा रहे हैं?
मैं आपको बताना चाहता हूँ आसमान का खुदा जो है ये फरमाता है मैं कुर्बानी नहीं बल्कि क्या करता हूँ, रहम पसंद करता हूँ। हम खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ा रहे होते हैं, कुर्बानी कबूल होएगी तो सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो ओ खुदा आंदा नहीं कुर्बानी नहीं मैनू चाहिए, मैनू रहम चाहिए। रहम किथे तेरे अंदर, ओ वहा मैनू। और फिर हमें लिखा हुआ मिलता है लूका की अंजील के अंदर एक कहानी छोटी सी मिलती है, एक तमसील छोटी सी मिलती है, और इस तमसील को आप तक पहुंचाकर आपको सुनाकर मैं आज के इस छोटे से पैगाम को ख़त्म करूंगा कि खुदावंद यीशु अल मसीह एक तमसील देते हैं कि एक शख्स के पास जो है दौलत आती है। जब दौलत आती है वो पहले तो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है दौलत जमा करने में लगा रहता है। जब दौलत उसके पास बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके पास इतनी दौलत हो जाती है रखने के लिए जगह नहीं होती। जब रखने के लिए जगह नहीं होती तो वो कहता है कि मैं अब नई कोठरियाँ जो हैं बनाऊंगा, उन्हें तमीर करूंगा और लाकर जो दौलत है उनके अंदर रखूंगा और फिर अपनी जान से कहूंगा कि ऐ मेरी जान खा पी और आराम कर, खुश रह। और आगे लिखा हुआ है कि उस नादान को, उस नासमझ को, उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता था कि जब वो ये कह रहा होता है कि ऐ मेरी जान बड़ा माल मैं जमा कर लिया, बड़ी दौलत संभाल ली है, बैंक भरे पे ने मेरी दौलत के नाल, ते हुण खा पी ते आराम कर, बड़ी देर असी मैं कामकार कर लिया। इंज ही साडी जिंदगी का हाल है। असी भी बैंक भरन के चक्करां दे विच लगे हुए हैं, दौलत जमा कर रहे हैं, तो फिर 50 साल बाद दौलत जमा करने तो बाद असी कहने लै हुण मेरी जान खा पी आराम कर। ते खुदा अगे की फरमांदा है, ऐ नादान तुझे क्या पता कि आज रात ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। तू सारी जिंदगी दौलत जमा करता रहा ते वो दौलत नू वेख भी नहीं हो सकेगा, अज रात तो बाद इसका मज़ा भी नहीं ले सकेगा। इसी तरह जो है हमारी ज़िंदगी का भी हाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना ख़जाना जो है, अपनी दौलत जो है ज़मीन के ऊपर जो है वो जमा ना करें। खुदावंद यीशु अल मसीह फरमाते हैं कि अपनी दौलत, अपना ख़जाना ज़मीन पर नहीं बल्कि कहाँ पर, आसमान पर जमा करो। जब आसमान पर आप जमा करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि एडी तो साड़ी थ्रो भी नहीं है कि असी समान की तरफ जरा साढ़े को बचे उधर सट दईए, या कोई फरिश्ते आखिए कि आगे आसमान से लै जा साडा खजाना उसे जाके जमा कर लै। ऐसी बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आप जब रहम करते हैं गरीबों पर, मस्कीनों पर, लाचारों पर, जो हक रखते हैं उन पर, तो आप अपना खजाना जो है वो ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर जमा कर रहे होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिवर ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री जो है वो ज़मीन पर अपना ख़जाना जो है जमा नहीं कर रही बल्कि आसमान पर जमा कर रही है। और आप देख सकते हैं कि हम अपने भाइयों के लिए दर्द रखते हैं, खिदमत रखते हैं कि ये जो गुलामी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पस्त हाली में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कर्ज की लानत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनको यहाँ से निकाल कर आज़ादी बख्शे। और ये खुदावंद यीशु मसीह का विजन था कि वो आए ही कैदियों को रिहाई देने थे। खुदावंद आपको बरकत दे और हमें तौफीक दे कि हम एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे पर रहम करें। जब हम एक दूसरे पर रहम करेंगे, एक दूसरे का भार उठाएंगे, तो खुदावंद जो है वो हमारा भार खुद उठाएगा। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे। आमीन।